आमମାନଙ୍କର एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पवित्र नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ଗତ ବର୍ଷର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଅନୁଗ୍ରହ, ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତୁମର ସେ ନୂତନ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମର ଆଶ୍ରିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ, ତୁମର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପାରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ମାର୍ଗରେ କଢ଼େଇ ନିଅ। ତୁମର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପୁଣି ଥରେ ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ପାଳକ ହେଇ କଢ଼େଇ ନିଅ। ତୁମର ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ କର। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମର ସେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସମୟର ଭାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିବା ଏବଂ ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନର ନିମନ୍ତେ। जेबे राजा जीशु आसिबे, दूत आउ साधु मेळरे, तुरी शबदरे डाकिबे, जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे, दूत आउ साधु मेळरे, तुरी शबदरे डाकिबे, जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे। से मध्य आकाशर सीमारे मोते भेटिबे स्वर्गीय तेजरे। से मध्य आकाशर सीमारे मोते भेटिबे स्वर्गीय तेजरे। लभिमु नूतन शरीर होई जीवितांक परिरे। लभिमु नूतन शरीर होई जीवितांक परिरे। जेबे राजा जीशु आसिबे, दूत आउ साधु मेळरे, तुरी शबदरे डाकिबे, जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जी
ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ପାଇବି ମୋର ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମୋ ଶିରେ। ପାଇବି ମୋର ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମୋ ଶିରେ। ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ। ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ସେ ମହାପୁନରୁତ୍ଥାନ କାଳେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ସେ ମହାପୁନରୁତ୍ଥାନ କାଳେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ନ ଯିବ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ନିଜ ମନରେ। ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ନିଜ ମନରେ। ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ। ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ। ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ। आमने जो विशेष पुस्तक को अध्ययन करूछु ताहा आपण माने बाइबल रो शेष भाग रे पाइबे जहार नाम होची जोहनक प्रति प्रकाशित वाक्य। एडा होची प्रकाशित वाक्य अर्थात इथिरे जो सब विषय दिया जाइछि आम्मानकर जानिबा उद्देश्य रे दिया जाइछि। एहाकु गुप्त रे रखा जाय नाही। यार विपरीत विषय जदि कहिबा ताहले दानिएल पुस्तक को गोटे प्रकार गुप्त रे रखा गला। दानिएल को आदेश दिया गला एई पुस्तकर समस्त विषय को मुद्रांकित करी रख। किंतु जोहन को आज्ञा दिया गला तुमे समस्त लेख एवं पठाओ मंडली गण को जनाओ समस्ते जेपरि जानिबे। भाई भणी माने आपण को मते आम्मान को समस्त को प्रेम करुवा आम्मानकर प्रभु से आम्मान को जनईबार निमंते विशेष करिकी जुगांत समय कौन हम ताहांकर आगमन समय कौन हम ए पृथ्वी एवं ए जुगर शेष कि प्रकार हेब एवं नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी आरंभ कि प्रकार हेब ख्रीष्टंकर शांति राज्य कि प्रकार आसीब ए समस्त विषय विशद विवरण एवं से सब विषय आसीबा समय पृथ्वी रे जो प्रकार भयंकर घटना सब घटिब प्रकृति जगत रे जो प्रकार भयानक कांड सब घटिब से समस्त विवरण ए पुस्तक रे लेखा अछि। कहयाकु गले प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी ए पुस्तक सहित सुपरिचित हवा आवश्यक
कारण यह आममानकर जीवन संबंधरे आममानकर वर्तमान और भविष्य संबंधरे अटे। आउ सेथिपाई ए पुस्तक को आम माने बार बार पढ़िबा एवं अध्ययन करिबा नितांत जरूरी अटे। दुखर कथा जे अनेक भाई भणी माने से माने पुस्तक को अवहेला करि अछंती किंबा उपेक्षा करि अछंती। बहुत कम लोक ए पुस्तक प्रति रुचि रखते। विशेष करिकी शत्रु शैतान चाहे नाही दुईटी पुस्तक को विशेष करिकी से घृणा करे, जदि बा अन्यान्य समस्त पुस्तक को मध्य से पसंद करे नाही। से दुईटी पुस्तक होची आदि पुस्तक एवं प्रकाशित पुस्तक। आदि पुस्तकर विरुद्ध रे अनेक प्रकार से प्रतिरोधर विषय सब आने। से सब वास्तव नुहे, सत्य नुहे, मिथ्या इत्यादि आरोप लगाए। ये सब आरोप सत्वे आज पर्यंत आदि पुस्तक बाइबल रे स्थान पाइछि एवं ताहा ईश्वरंकर वाक्य भाव रे सुपरिचित अटे। कहीं से पुस्तक को से घृणा करे, कारण से पुस्तक रे ही तार दंडाज्ञान कथा लिखा अच्छी, तार मस्तक चूर्ण हवा विषय लिखा अच्छी, तार क्षमता ताठारु छिन्न करा जिबा विषय लिखा अच्छी, तार दंड विषय लिखा अच्छी। एवं ये जो पुस्तक प्रकाशित पुस्तक को से घृणा करे, कारण एटा से समय आक्षरिक भाव में जितेबले ताकू नरकरे निक्षेप करा जीव, एई समस्त विवरण एठारे लिखा अच्छी। ए दुटी जाक विषय को से पसंद करे नाही, ग्रहण करने को चाहे नाही, जदि बा एगुड़ाक निराट सत्य अटे, यह वास्तव में घटी अच्छी एवं घटवा जाऊ अच्छी। आउ सेथिपाई से कौन करे, प्रभुंकर लोक मानकु ईश्वरंकर लोक मानकु भुआ बुलाए। यही दुईटी पुस्तक विशेष भाव में प्रकाशित पुस्तक से मानकु जिते दूर पारिब पृथक रखिबा पाई से चेष्टा करे, किंबा जो माने पढ़िबा को चाहती से मानकर मनरे ए प्रकार धुआं सृष्टि करे जद्वारा से माने स्पष्ट देखिबा को पारिबे नाही। कुहुड़ी बेसी हेले जेमती कि आखि को देखा जाए नाही, पाखरे थिबा विषय गुड़िक मध्य स्पष्ट देखा जाए नाही, दूर रे थिबा विषय गुड़िक तो बिल्कुल देखा जाए नाही। से प्रकार अवस्था मध्य को नहीं जाए जिते आमान मध्य अनेक ये पुस्तक को पढ़ा को जाऊ, सबकि आम को कुहुड़ी परी लगे, धुआलिया लगे, आखि को झापसा लगे, आम मैंने स्पष्ट देखा पारि न था। ये हूँ शत्रु शैतान चाल। मात्र निराश हबार आवश्यकता नहीं, भय करिवार आवश्यकता नहीं, साहस बांधिबा दरकार अछि। कारण ईश्वरंकर आत्मा जो पवित्र आत्मा आम मानकर निमंते ई पुस्तक को उन्मुक्त रखी अछंती, से पवित्र आत्मा आम मान ठारे आम मान संगरे अछंती, आम मान ई पुस्तक बुझाई देवार निमंते। आउ सेथिपाई आम माने ई पुस्तक को अध्ययन करूछु। अवश्य आम माने नितांत भाव में से अत्यंत गभीरता भीतर को जीवाकू पारुना हो, कारण समय आम मान अति कम अटे। से आम मैंने चेष्टा करुचु स्वाभाविक भाव में जी आम मैंने जाना अंतत दरकार से विषय गुड़िक प्रति आम मैंने दृष्टिपात करी आलोचना करुचु। एवं गत अध्याय मानक आम मैंने 6 अध्याय पर्यंत आलोचना करियछु। 6 अध्याय रे सप्त मुद्रा भंगा जीवार कथा लिखा अछि एवं 6 अध्यायर आरंभ रु प्रथम मुद्रार भंगा जीवार कथा लिखा जाउछि एवं 6 अध्यायर शेष आड़कू षष्ठ मुद्रा भंगा जीवार कथा लिखा जाउछि। 7 अध्याय जिते मैंने खोलु से मुद्रा भंगा जीवा कथा लिखा जाऊ नाही, किंतु 6 अध्याय एवं 8 अध्याय मध्य, कारण सप्तम मुद्राटी भंगा जीवार विषय 8 अध्याय लिखा जाउछि। तेबे ए षष्ठ मुद्रा एवं सप्तम मुद्रा मध्य जो पैरेंथेसिस बोली कहा जाए बा जहाकू कि कुहाजिब ए जो बंधनी द्वारा समन्वित खंड बा भाग बा मध्यवर्ती अवकाश, जेमती कि संगीत रे इंटरल्यूड थाए, घोषा एवं अंतरा मध्य इंटरल्यूड म्यूजिक जे प्रकार थाए, से प्रकार षष्ठ मुद्रा भंगा जीवा उतारे एवं सप्तम मुद्रा भंगा जीवा पूर्वरु मझिरे गोटे इंटरल्यूड पीरियडटा आसुची, जोटा कि 7 अध्याय रे लेखा अछि। कहयाकू गले 6 अध्याय 17 पदरे जो प्रश्नटी पचरा जाइछि, आउ सेही प्रश्नटी लोक माने पचारु अछंती, एक आरेक को पचारु अछंती, प्रकृति जगत को पचारु अछंती। सेमानकर प्रश्न कौन? 16 पद एवं 17 पद को जदि पढ़िबा, पुणी से माने पर्वत और शैल मान को कहले को माने जो माने ख्रीष्टन को विश्वास करि नाहंती, ग्रहण करि नाहंती, अबाध्य होइछंती शेष पर्यंत। आउ से माने कौन करू अछंती? से माने पर्वत और शैल मान को कहले आंभ मान को ऊपर पड़ी सिंहासन पविष्ट व्यक्ति छामरु ओ मेष शावक क्रोधरु आंभ मान को लुचाई रख। टिके ध्यान दियंतो,
सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति होउछंती सदाप्रभु परमेश्वर पिता ईश्वर एवं ताहांक दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करी अछंती ताहांकर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे कि ईश्वरकर मेष शावक बोलिकी परिचित अटंती। हेले एठी उभयंकर क्रोधर कथा लिखा जाउची। स्वर्गर परमेश्वर क्रोध करी अछंती पृथ्वी उपरे एवं पृथ्वीवासी उपरे। कौन पाई? कारण पृथ्वीवासी पाप अपराध एते बढ़ी जाइए जे से आओ सह्य करिया पाई नाराज अटंती। से क्रोधरे जर्जरित एवं आपणार कोप पृथ्वी उपरे जगतवासी उपरे से ढालिबा को जाऊ अछंती बा ढाळु अछंती। तेबे से आपणा महाक्रोधरे जेतेबेले से प्रकाशित होउछंती विशेष भावरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले आउ थरे फेरी आसु अछंती एई सृष्ट जगत मध्यकु एई पृथ्वी ग्रह मध्यकु एई लोकमानकर निकटकु आउ सेई समयरे से महाक्रोधरे महापराक्रमरे महागौरवरे महातेजरे ताहांकर असंख्य दूतमानकर पराक्रम शक्ति एवं स्वर्गर समस्त बाहिनी सहित से आसु अछंती। आउ ये कथा जेतेबेले जगतर लोक माने देखिबे से माने भयभीत हेबे से माने आतंकित हेबे आउ से माने कोन करिवे सेई ईश्वरंकर सेई प्रभुंकर पुनरागमन करुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सामना करिबा परिवर्ते से माने कोन करिवे दौड़िबे एपट सेपटे कोठी की जिवे पहाड़ पर्वत को जिवे आउ से माने पहाड़ पर्वत को कहिवे आम मान को ऊपर पड़ आम मान को लुचाई रख। कौन कारण? कारण 17 पदरे दिया कारण से मान को क्रोधर महादिन उपस्थित होई अछि। कहार क्रोध? सिंहासन उपविष्ट परमेश्वर जो मनीष कहूचे ईश्वर नाहंती मने रख तुमे ईश्वर अछंती आ ताहांकर क्रोध प्रकाशित हेउछि आ हेबाकु जाउछि पूर्ण मात्रा रे। संभाली पारिब त? से दिन पर्वत तुम कथा सुनिब नाही, पहाड़ पर्वत गुंफा कौनसी सृष्ट विषय सुनिब नाही। सदा प्रभु जेतले क्रोधान्वित होइकि कोप ढाळिबे संभाली पारिब कि हे मनीष? एडे उद्धत काहीकि? उद्धत मनीष माने से माने सृष्ट जगतर सहारा नेबाकु चाहिए किंतु ईश्वरंकर आश्रय को तुच्छ ज्ञान करते से माने। आउ सेति पई से माने पचारंती जेतेबेले से मानक महाक्रोधर दिन उपस्थित होई अछि किए ठिया होई पारे से मानकर क्रोधर सम्मुखरे? कौनसी मर्त्य नाही, कौनसी सृष्ट जगत नाही जे कि सदा प्रभुंकर कोपर सामना करि पारिबो, चैलेंज करि पारिबो, अटकई पारिब, बदलई पारिब। ए प्रकार कौन सी सृष्ट व्यक्ति बा कौन सी सृष्ट प्राणी नाहंती। भाई भौणी माने दियाबल तार समस्त बाहिनी एकाठी हेले मध्य से माने रोकी पारिबे नाही कारण से मान को ऊपर मध्य कोप ढळा जाउछि। सेति पई से माने प्रश्न पचारुछंती। एक तो सृष्ट जगत को पचारुछंती, पहाड़ पर्वत को पचारुछंती किए से मान को आगरे ठिया हबो। आउ से माने एक आरेक को पचारुछंती किए से मान को आगरे ठिया हबो। सेही प्रश्नर उत्तर एई 7 अध्याय रे दिया जाई अछि। किए ठिया ही पारिबो? आउ सेथिरे कुआ जाउची जिहुदी मानकर गोटे दल जो माने से दिन ठिया हवाकू समर्थ हेबे से मानक विषय रे एठारे वर्णना करा जाइछि। महाक्लेश मध्यरे भी परमेश्वर आपणार करुणार कार्य को जारी रखिबे। वाक्यरे लेखा जाए ताहांकर करुणा शेष हुए नाही, तांकर बहुविध दया हेतु ही आम माने से भयंकर वर्ष को अतिक्रम करिकी नुआ एक वर्ष रे प्रवेश करिया को पारिचु। भाई भौणी माने ईश्वरंकर स्नेहपूर्ण करुणा आपण को आ मते जीवित रखी अछि। सेतिपई ताहांकर करुणा को हल्का भावरे नेबा नाही, ताहांकर करुणा को मामूली सस्ता भावरे नियंतु नाही। ताहांकर करुणा आपणकर प्राण को बंचाई रखी अछि, मोर प्राण को बंचाई रखी अछि। महाक्लेश समय मध्य प्रभु ताहांकर करुणार कार्य को जारी रखिबे। हेले एठारे लेखा जाउसी 7 पर्वर प्रथम 3 पदरे जहाँ मु पढ़िया पाई चाहूची। रेवलेशन 7 द फर्स्ट 3 वर्सेस। तत्परे मु देखिली पृथ्वी की समुद्र की कौनसी वृक्ष उपरे जेपरी वायु न बहे एथि निमंते पृथ्वीर 4 कोणरे 4 जन दूत ठिया होई पृथ्वीर 4 वायु को अटकाई धरी अछंती। पुणी मु आउ जने दूतंकु पूर्व दिगरु उठी आसिबार देखिली, ताहांक हस्तरे जीवित ईश्वरंकर मुद्रा थिला। पृथ्वी और समुद्रर क्षति करने निमंते क्षमता प्राप्त से 4 दूतंकु से उच्च स्वर रे डाकी कहले, आम्भे माने आपणा मानक ईश्वरंकर दास मानक कपाल रे मुद्रांक न देवा पर्यंत
ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ କିଏ ବା ସମୁଦ୍ର କିଏ ବା ବୃକ୍ଷ ସମୂହର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଯୋହନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, 4 ଦୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଦୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଦୂତ, ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋହନ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର 4 ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏକ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖାଯାଉଛି ତତ୍ପରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏଇଟା ସୂଚାଏ ଯେ ଯୋହନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲି। ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତତ୍ପରେ କିମ୍ବା ଏହା ପରେ ଶବ୍ଦଟି ବାରବାର ଆସିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖାଉଅଛି, ଆଉ ତାହା ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ପରେ ପରେ କ୍ରମରେ ଆସୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବର୍ଷୁଅଛି ବା ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ଦିଆଯାଉଛି। ଫୋକସ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି? 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଢଳା ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅଧାର୍ମିକ ଜଗତ ଉପରେ। ତେବେ ସେଇଠୁ ଫୋକସ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେଇ ଫୋକସ୍ଟା ରହୁଛି? ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ, ସେଇ ବିପଦର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚୁଅଛି। ଯୋହନ 4 ଦୂତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର 4 କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ପୃଥିବୀର 4 ଦିଗକୁ ସୂଚାଏ, ଯେଉଁ 4 ଦିଗରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୂତମାନେ ଏ 4 ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ବାୟୁ ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯାହା ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କୌଣସି ମତେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏ 4 ଜଣ ଦୂତ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ତାକୁ ରୋକି ରଖୁଅଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ବାୟୁ ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ଏ ଦୂତମାନେ 4 ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିରେ ବନ୍ଦ ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ବେଳେ କୌଣସି ମତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତିକି ଅଟକା ଯାଉଛି। ସେଇ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏଠାରେ। ବାୟୁକୁ ଅଟକାଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ସପ୍ତତୁରୀର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା, କାରଣ ୟା ପରେ ପରେ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତତୁରୀର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଏବଂ ସପ୍ତତୁରୀର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତ ପାତ୍ରର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ମୁଦ୍ରା, 7 ତୁରୀ ଏବଂ 7 ପିଆଲା ବା 7 ପାତ୍ର। এই ଏବେ ତ 7ଟି ମୁଦ୍ରା ସରିବା ଉପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ 2ଟି ମହାଦଣ୍ଡ ବା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମହାଦଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଏ 4 ଜଣ ଦୂତ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯୋହନ
से समय बेलू गोटे उच्च स्वर रे कही जड़े कहबार शुणुअछंती किए कहूअछंती आ से बुली पड़ी देखुछंती पंचम दूत अर्थात आउ जड़े दूत आ ताहांकर आविर्भाव ताहांकर चेहरा ताहांकर रूपाकृति विषय एठारे मध्य लेखा जाउची। एई दूत ए पंचम दूत से कोठु आछंती से पूर्व दिगरु इस्राएल देश आड़कू उठी आसीबार देखा आ ताहांकर हाथ खाली नथिला कारण ताहांक हाथ रे जीवित ईश्वरंकर मोहर बा मुद्रा थिला। बाइबल रे मुद्रा बा मोहर साधारणतः मालिकाना एवं ताकू सुरक्षित रखिबार विषय को सूचाई थाए। राजा माने साधारणतः निजर अंगुठी रे अंगुरीय पिंधुथिले मुद्रिका पिंधुथिले एवं से मुद्रिका को क्षमतार मुद्रिका बोली कहा जाए। कौन सी विशेष निष्पत्ति नेला उतारे ताहाकू जेतले राजा साइन करंती सिग्नेचर करंती सेतेबेले से मुद्रिका से कौन करंती तरल ए जो महमरु नेकी बा इंक रे लगेई कि से कौन करंती ताकू सेथिरे लगेई दियंती ताहाले से राजांकर मुद्रा राजांकर मोहर लागिची आ सेटा राजकीय भाव रे अधिकार संपन्न अटे ताकू केही हेले बदलई पारिबे नाही ताकू केही अमान्य करि पारिबे नाही ताहा सर्वत्र समान अधिकार समान क्षमतार सहित समान शक्तिर सहित कार्यकारी हब समस्ते ताहा मानिबाकू बाध्य से प्रकार विषय एठारे आम माने देखुचु। हेले एहाकू जीवित ईश्वरंकर मुद्रा ताहांकर क्षमता ताहांकर अधिकार ताहांकर शक्ति को प्रकाश करुथुबा विषय अटे। एठारे जो मुद्राटी व्यवहार करिया पाई दिया जाइची आउ से दूत जन को दायित्व दिया जाइची से दूत से ईश्वरंकर मुद्रा को धरिछंती आउ एटा कोन पाई व्यवहार करा जीव पृथ्वी रे आसुथिबा आसन्न दंडाज्ञा ईश्वरंकर क्रोधरु रक्षा करिबार उद्देश्य रे ईश्वरंकर दास मानकू रक्षा और संरक्षित करने उद्देश्य रे ए मुद्रा बा ए मोहर को व्यवहार करा जाउची। आमने यार गोटे नमूना मध्य जिहिजिकल 9 पर्व 3 पदरु 6 पद मध्य रे पढ़ी पारिबा केतले समय पाइले आपण माने से अंश को खोलिकी पाठ करिवे। आउठारे दूत से पंचम दूत उच्च स्वर रे घोषणा करूअछंती एक जरूरी परिस्थिति ओ क्षमतार सहित ए पंचम दूत उच्च स्वर डाकी कहले से कौन कहले तुम्भे माने पृथ्वी किय बा समुद्र किय बा वृक्ष समूहर क्षति कर नाही। चारि दूत चारि बाई को खोली देले पृथ्वी रे जेउ सबु भयानक घटना सबु घटिब से विषय एठारे आम माने सम्यक सूचना पाबुछु। जे पर्यंत परमेश्वरंकर दास मानक कपाल रे मुद्रांक बा मोहर दिया जाए नाही से पर्यंत यही सब दंडाज्ञा को अर्थात सप्ततुरी एवं सप्तपात्र दंडाज्ञा को अटकाई रखिबा निमंते यही दूत मान को कहा जाउछि। को माने जो मान को मोहरांकित करा जीव से माने होचंती से 144,000 लोकंक विषय जोड़ा कि 7 अध्याय रे लेखा अछि। ए माने ईश्वरंक उद्देश्य रे उत्सर्गीकृत और ताहांकर अनुगत्य सेवक माने अटंती एवं से माने से महाक्लेशर अंधकार पूर्ण समय रे विश्वस्त भाव रे ख्रीष्टंक सुसमाचार प्रचार करंती। एमाने उचंती सेई शक्तिशाली आउ दल एमाने कौमान कठारु आसु अछंती कौमान कठारु एमान को पृथक करा जाउची जिहुदी मान कठारु आम माने 4 पदरु 8 पद पर्यंत जदि आम माने पढ़िबा आ सेथरे लेखा जाउची मो पढ़ी दोची आपण माने मन देकी सुनंतु रेवलेशन 7:4-8 तत्परे मुद्रांकित लोक मानकर संख्या मो सुनिली इस्राएल संतान मानक समस्त वंशरु 1,44,000 लोक मुद्रांकित हेले। जिहुदा वंशरु 12,000 रुबेन वंशरु 12,000 गाद वंशरु 12,000 आसेर वंशरु 12,000 नप्ताली वंशरु 12,000 मनसी वंशरु 12,000 सिमियोन वंशरु 12,000 लेवी वंशरु 12,000 इसाखर वंशरु 12,000 सबलून वंशरु 12,000 जोसेफ वंशरु 12,000 बिन्यामीन वंशरु 12,000 1,44,000 लोक प्रति इस्राएल 12टी गोष्ठी प्रति गोष्ठी 12,000 करिकी ए प्रकार भाव 1,44,000
ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ 1,44,000 ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜିହୁଦୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ସମୟରେ ଏକ ଜାତି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ବା ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଥିବା ସର୍ବମୋଟ ଜିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କାଳରେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଜୀବିତ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ ଦଳ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ସାହସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶଧର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଆଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ 12,000 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରାଗଲା ବା ମୋହରାଙ୍କିତ କରାଗଲା, ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, ପୃଥକ କରାଗଲା। ମାନବୀୟ ଚୟନ, ମାନବୀୟ ମନୋନୟନ ଏପରି ଯଥାର୍ଥ ଓ ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରିକି ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୟନ କରାଯାଏ, ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଏ, ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ସାଂସାରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୋନୀତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଚୟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନଥାଏ। ସେ ନ୍ୟାୟରେ, ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ ଚୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆଜି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ଅସରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହେଇକି ଇସ୍ରାଏଲର 10ଟି ବଂଶ ସାରା ଜଗତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଣ୍ଟି ଜିହୁଦୀ ବା ଖାଣ୍ଟି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ହଁ, ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜାତିକୁ ସେମାନେ ନିଖୁନ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଜିହୁଦୀ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବଂଶ ପରେ ବଂଶ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର 12,000 କରିକି ମନୋନୀତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ବଂଶର ତାଲିକା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ବଂଶର ସେଇ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ତତଃ 19ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିଆଯିବାର ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ତାଲିକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ନାମ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। 12ଟି ବଂଶରୁ 12 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ସେଠାରେ ଶେଷ 2ଟି ଦଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯୋସେଫ, ମନୋସି, ବିନ୍ୟାମିନ୍। ଯୋସେଫ ବିନ୍ୟାମିନ୍ କଥା ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମନୋସି ଯୋସେଫଙ୍କର ବଂଶରୁ, ଆଉ ତଥାପି ତାଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେହି ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ସତ୍ୟକୁ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟିଏ ମିଶନାରୀ ଦଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହା ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ମିଶନାରୀ ଦଳ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ 1,44,000 ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମିଶନାରୀ ଦଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ, ତାହା ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେବ, ଅତୀବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଦଳ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବେ? ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମ
ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ परमेश्वर से नियम को पासरी नाहांती से चुक्ति को एपर्यंत मन रखिछंती। अब्राहम को निजर मित्र भाव से ग्रहण करथिले आउ मित्र प्रति करिथिबा शपथ को परमेश्वर भांगंती नाही। जदिबा अब्राहम कर वंशधर बारंबार भांगी भांगी आसिले अबाध्य होइकि आसिले किंतु परमेश्वर से विश्वस्त अटंती आउ से शेष काल रे से प्रकार भाव रे कार्य करिवे। आउ एमाने पृथ्वीर सबठारु अंधकारपूर्ण समय रे जो प्रचार करिवे तद्वारा पृथ्वी रे बहु संख्यक लोक उद्धार पाइबे। से माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिवे आउ से माने अणजिहुदी पृष्ठभूमि रु आसीबे। मन रखिथांतु जिहुदी एवं बाकी समस्ते हेलु आ माने अणजिहुदी। तेबे अन्य जाति सबुरु अनेक संख्यक लोक माने मध्य प्रभु यीशुଙ୍କୁ ग्रहण करिया को पारिबे। ए महाक्लेश समय मध्य ताहा घटिबो। आउ सेथिपाई जोहन से देखुछंती कौन 9 पद एवं 10 पद रे से आउ गोटे बड़ दल को देखुछंती। एठारे एई छोट दल तार संख्या दिया जायछि किंतु या परे आउ गोटे दल को जोहन देखुछंती सेही दलर संख्या दिया जाय नाही। मु पढ़ी दोछि 9 पद एवं 10 पद। एहा परे मु दृष्टिपात कली आउ देख सर्वजातीय सर्वगोष्ठीय सर्ववंशीय और सर्वभाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई और खजुरी बाहु हस्तरे धरी सिंहासन और मेषशावकଙ୍କ सम्मुखरे दंडायमान होई अछंती। से माने उच्च स्वर रे कहु अछंती परित्राण सिंहासन पविष्ट आम्भमान को ईश्वरंकर और मेषशावकଙ୍କର कार्य। एमानकर संख्या विषय ठारे लिखा जाउची। आउ एठी मध्य 9 पदरे मध्य एहा परे शब्द सहित लिखा जाउची। पुणी थरे आमाने जानू एहा परे शब्दटी पूर्व दर्शन ठारू पूर्व दृश्य ठारू भिन्न एक नूतन दर्शन को उपस्थापन करिवार आमाने देखुअछु। आउ एठारे लिखा जाउची से लिखुचंती एहा परे मु दृष्टिपात कली आउ देख सुचाए जे एही दर्शन बा एही दृश्य मध्य जोहनଙ୍କ निमंते चमत्कार दृश्य थिला। ए बृहत दलर आकार को सूचाई जोहन लिखंती जे अगण्य एक महाजनता। प्रथम दलटी हुईत से गणी पारले बा तांकु से संख्याटी जणागला किंतु ए द्वितीय दलटी अगण्य असंख्य एते लोक जे जोहन गणिबा को पारु नाहांती एवं दूत माने से मानकर संख्या को कहु नाहांती। आउ सेतिपाई जोहनकर निमंते यह अगण्य असंख्य एक बड़ दल अटे महाजनता बोलिकी से लेखु अछंती। से मानकर जातीयता विषय लेखा जाउची सर्व जातीय अर्थात विभिन्न देशर लोक माने विभिन्न जातिर लोक माने अणजिहुदी मानकर एही बृहत दलटी पृथ्वीर सर्वजातीय सर्वगोष्ठीय सर्ववंशीय और सर्वभाषावादी मध्यरु आसी अछंती। मु भावुची कौनसी गोटे देश बा कौनसी गोटे जाति बा कौनसी गोटे गोष्ठी बा कौनसी गोटे भाषावादीर लोक एथिरु बाद पड़िबे नाही। प्रतिटी वंश प्रतिटी गोष्ठी प्रतिटी देशर प्रतिटी भाषावादी मध्यरे रिप्रेजेंटेशन रहिबो। होइतो से माने सर्वत भाव रे संपूर्ण रूपे होइतो मुक्त हेबे नाही बा उद्धार पाइबे नाही किंतु प्रतिटी गोष्ठी प्रतिटी दलरु किछि किछि लोक नितांत स्वर्ग रे उपस्थित हेबे। ओ केते सुंदर से स्थान एवं केते सुंदर से दृश्य हब जे पृथ्वीर समस्त गोष्ठी मध्यरु किछि किछि प्रतिनिधि मादे निश्चय सेठारे रहिबे। एमाने से मानक मध्यरु आसी अछंती। प्रभु यीशु आगरु ए विषय मध्य जगत रे थिबा बेले शिष्य मान को से कहि दैथिले आउ समस्त जाति निकट रे साक्ष्य दबा निमंते राज्यर एही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा जिवो तत्परे जुगांत हब। समस्त जाति निकट रे ए राज्यर सुसमाचार घोषणा करा जिवो तत्परे जुगांत हब। सेमानकर अवस्थिति सेमानकर लोकेशन विषय ठारे कहा जाउची। से महाजनता स्वर्ग रे केउ स्थान रे अछंती। ईश्वरଙ୍କ सिंहासन ओ मेषशावकଙ୍କ सम्मुख रे सेमाने दंडायमान होई अछंती। सेमाने उत्सव समय रे परिधान करा जाउथबा पिंधा जाउथबा पोशाक सदृश
शुक्ल वस्त्र परिहित होइअछन्ति जहा मुक्तिप्राप्त लोकमानकर वस्त्र अटे एवं ताहा ईश्वरଙ୍କ धार्मिकता और पवित्रता को दर्शाए। यह दलटी तार पूर्व अध्याय अर्थात प्रकाशित 6 पर्व 9 ରୁ 11 पदरे वर्णित विश्वासी साक्ष्य मानकर दल गोटे अंग परिकी मने होउची बा सेमाने जे प्रकार एमाने मध्य सेमानकर गोटे अंश विशेष परि मने होउची। मात्र आमने से विषय निश्चित नहो। पृथ्वी रे महाक्लेश सरी आसुथिबा समय रे साक्ष्यमर मानकर संख्या मध्य नाटकीय भाव रे वृद्धि पाइब। से साक्ष्यमर साधु माने मध्य हस्तरे कौन धरी अछंती? खजुरी बाहुंगा धरी अछंती। धर्मशास्त्र रे पवित्र बाइबल रे खजुरी बाहुंगा उत्सव पालन, उद्धार, मुक्ति और आनंद को दर्शाए। से मानकर उपासना विषय ठारे लिखा जाउछि। जोहन कहउछंती से माने खाली ठिया ही नांती किंतु ईश्वरंकर आराधना करूअछंती। से मानकर आराधना उपासना रे से माने कोन करूअछंती? स्वर्गर अन्य समस्त प्राणी को सदृश मुक्ति प्राप्त साक्ष्यमर माने मध्य उच्च स्वर रे कहूअछंती परित्राण सिंहासन उपविष्ट आंभमान को ईश्वरंकर ओ मेष शावकंकर कार्य अटे। से माने समस्त दूत प्राचीन वर्ग और चारि प्राणी को सहित ईश्वरंकर प्रशंसा करूअछंती। सर्वशक्तिमान परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा हेउची स्वर्ग रे थिबा समस्त प्राणींकर एक निरवच्छिन्न कार्य। भाई भणी माने आपण स्वर्ग जीवा पाई इच्छुक एवं प्रस्तुत होउछंती। आमे समस्ते स्वर्ग को जीवा पाई चाहूचु एवं आमाने इच्छुक अटु, प्रस्तुत अटु बा प्रस्तुत होउचु। किंतु सेठकी गले आमानकर काम कोन हबो से विषय केबे भाबिछंती कि? बाइबल रे लिखा अछि सेठी आमानकर गोटे मात्र मुख्य काम रहिबो, ताहा होची निरवच्छिन्न भावरे ईश्वरंकर उपासना करुथबा। आज आंशिक भावरे परमेश्वरंकर उपासना होची दुखर विषय जे अनेक मंडली रे ईश्वरंकर उपासना को अधिक समय दिया जिबा परिवर्ते ईश्वरंकर उपासनार नाम रे मनोरंजन कार्यक्रम सब को बेसी प्रायोरिटी दिया जाउची, अन्यान्य कार्यक्रम को बेसी प्रायोरिटी दिया जाउची। किंतु ईश्वरंकर आराधना केते समय धरी आम माने करूचु। हाँ, ए प्रकार केतक मंडली अछंती, मु से मंडली मान को मध्य जाइछि देखिछि, से माने घंटा घंटा ठिया ही कि प्रभुंकर उपासना आराधना करते। किंतु मेन लाइन चर्च मान करे ओ घंटाटी मध्य रे आम मानकर टोटाल उपासना शेष हो जिबा दरकार। आम मान को पाई घड़ी, आम मान को पाई समय माने एते मूल्यवान पर लगुची बा एते बड़ लगुची जे घंटाए रु अधिक जदि उपासना हो गला आम मानकर हाथ घड़ी को आम माने अनेबारे व्यस्त हो। आम मानकर मन स्थिर रहे नाही, आम स्थिर भाव रे उपासनालय रे बसुना हो। भाई भणी माने बेले बेले मो मन रे भाबे जे काहेकि परमेश्वर दीर्घ मास धरिकी मंडली को उपासना को बंद हेवा पाई अनुमति देले। होई तो गोटे कारण एथिपाई नुहे कि जे प्रभुंक नाम रे जो माने ख्यात बोली कहंती एवं प्रभुंकर उपासना नाम रे गिरजा घर को आसंती एकाठी हुंती, मात्र ईश्वरंकर उपासना ठीक भाव रे करंती नाही। ओठर उपासना एवं अंतरर उपासना मध्य रे आकाश पाताल व्यवधान थाए। खाली ऊपर ठाउरिया उपासना ठिया कि गोटे गीत गाई देले, बसिकी गोटे गीत गाई देले कौन उपासना हो गला? हृदय खोलिकी हृदय ढालिकी केबे उपासना करिसंती प्रभुंकर टिके चिंता करंतु। आउ सेथिपाई परमेश्वर कहंती एही प्रकार उपासना को आम्भे घृणा करू। घृणाजनक उपासना को आउ केते से नेबे बोलिकी होई पारे, सेथिपाई गिरजा घर सबु बंद करी रखले मास मास धरिकी। बुझिबा दरकार, विवेचना करिबा दरकार। कारण ईश्वर आज मध्य खोजु अछंती जो माने ताहांकर उपासना करिवे सत्य ओ आत्मारे करिबा दरकार। जो माने प्रार्थना करिवे सत्य भाव रे प्रार्थना करिबा दरकार। कारण जो माने सत्य भाव रे प्रार्थना करंती, सरल हृदय रे विश्वस्त भाव रे सचोट हृदय रे प्रार्थना करंती, सेमानकर निकटवर्ती होंती परमेश्वर। एवं जो माने सत्य ओ आत्मा रे उपासना करंती से प्रकार उपासक मान को प्रभु खोजु अछंती। से प्रकार उपासना पाइले से आनंदित हुंती, खुशी हुंती। भाई भणी माने प्रभुंकर जहा प्राप्य ताहा ताहांकु दबा, आ ताहा कौन? ताहा उचित ताहांकर उपासना।
भाई भौणी माने खाली दान पकईदेले यथेष्ट नुहे किंबा गिर्जा घरे अटेंडेंस देदेले यथेष्ट नुहे आमर हृदय ढाली निजकू ताहांको पाद तले उत्सर्ग करके ताहांकर उपासना करिबा ताहांको सबुबले जीवन रे उपासना करि चालिबा केमिति ताहांकर अधिकार ताहांको दवा आम जीवन उपरे आम शरीर उपरे आमर कार्यकलाप उपरे आमर प्रतिटी सिद्धांत पदक्षेप उपरे से अग्राधिकार पांतु ताहांकु यथोचित स्थान रे स्थानित करिबा सेटा होची उपासना। इंग्रजी भाषा रे गिविंग हिम द वर्थ इज वर्शिप वर्थिप इज वर्शिप आम माने ताहांकु ताहांको सिंहासन रे बसई से अनुसार दंडवत हो प्रणाम करू सेटा होची उपासना। भाई भौणी माने स्वर्ग रे ताहा ही आम मानकर कार्य हब जो मानकर परित्राणर अनुभूति अच्छी केवल से माने ही परमेश्वर को आंभ मानक ईश्वर आंभ मानक मुक्तिकर्ता बोलिकी दाबी करि पारंते समस्ते कहि परिबे नाही जे से स्वर्गर परमेश्वर उपासनार योग्य परमेश्वर से ईश्वरकर मेष शावक प्रभु जीशु ख्रीष्ट मोर ईश्वर आंभमानकर ईश्वर मोर मुक्तिदाता मुक्तिकर्ता आंभमानकर मुक्तिदाता त्राणकर्ता बोलिकी अन्य माने समस्त दाबी करि पारंते नाही केवल से माने कहि पारंते हृदय सहित जो माने ईश्वरंकर दिया जाइथिबा परित्राण को ग्रहण करिसंते जीवन रे प्रयोग करिसंते मन परिवर्तन करिसंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता ओ प्रभु भाव रे ग्रहण करि अछंती। अनेक केवल जीशु को त्राणकर्ता भाव रे जानंती प्रभु भाव रे मानंती नाही। दुखर विषय विश्वासी माने मध्य जीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली जीवन रे मानंती नाही ओठरे खाली कहंती किंतु हृदय रे कार्य रे विभिन्न विषय रे से माने प्रभु को से प्रभुत्व दियंते नाही निजे ता जगह को माड़ी बसिया पाई चेष्टा करंते। कर्नल क्रिश्चियंस शारीरिक मना मानसिक मना ख्रीष्ट विश्वासी सावधान परिवर्तित हवा दरकार से बाहरी आसवा दरकार। स्वर्ग रे आनंद होछि ए उपासक मंडली बाई उपासनाकारी माने जेतबेले उपासना करुछन्ते ईश्वरଙ୍କ सिंहासन सम्मुखरे मुक्ति प्राप्त विश्वासी मानकर अगण्य महाजनता केवल उच्च स्वर रे ईश्वरଙ୍କ उपासना करुछन्ते ताहाई नुहे सिंहासनर चतुर्दिगरे उभा होइथिबा दूत माने मध्य सेही उपासना रे शामिल अटंती। ध्यान दियंतु दया करिकि परित्राण को माने पाई अछंती ए मुक्ति प्राप्त साधु माने पृथ्वी उठी जाइथिबा ए विश्वासी भाई भौणी माने मात्र को माने एमानकर परित्राण रे मध्य आनंद करुअछंती स्वर्गर दूत मानकर परित्राण संपर्क रे कौनसी अभिज्ञता नाही कौनसी अनुभूति नाही कारण प्रभु जीशु से मानकर निमंते प्राण देई नाहंते प्रभु जीशु केवल आपणक पाए मो पाए सारा विश्ववासींकर पाए प्राण देइछंते जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्तंकर निमंते से एकमात्र बलिदान स्वरूपे ए जगत को आसिले एवं निज प्राण को बलि उत्सर्ग कले सेथिपाई तो जे केही ताहांकर से बलिदान रे विश्वास करिब से विनष्ट हब नाही अनंत जीवन पाइब। भाई भौणी माने परित्राणर अनुभूति जदिबा दूत मानकर नाही तथापि मनुष्य मानकर परित्राण रे से माने आनंद करुअछंती। प्राचीन वर्ग अर्थात गौरव रे ऊर्ध्वांतर होइथिबा मंडलीर प्रतिनिधि माने एवं चारि प्राणी अर्थात किरुबगण दूत मानकर एक विशेष श्रेणीर दूत माने से माने मध्य एई उपासना रे शामिल अटंती अर्थात से माने मध्य ए मुक्ति प्राप्त लोकमानक सहित उपासना करुअछंती। आ इमानकर उपासना रे कोन कहा जाउची ईश्वरंकर महिमा गौरव और सिंहासनर तेजरे प्रभावित होई से माने उबुड़ होई पड़ी प्रणाम करुअछंती। भाई भौणी माने उपासनार गोटे गेस्चर होची कौन उबुड़ होई प्रणाम करिबा। आम माने प्राचीन मान को वयोज्येष्ठ मान को हाथ छुई कि पाद छुई कि प्रणाम करि थाओ किंतु ईश्वर को केबे प्रणाम करिचो प्रकृत रे प्रणामर योग्य होउछंती प्रभु परमेश्वर। उबुड़ हवा ताहांक छामुरे आहे आस ताहांक छामुरे आंठु भांगी
ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଦ ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ବାଉ ଡାଉନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱର୍ସିପ୍ ହିମ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଏ ଉପାସନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ? ସେମାନଙ୍କ ଉପାସନା ଓ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟ 4 ଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଉପାସନା ଓ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାୟ ମିଶୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେନ୍ ଶବ୍ଦରେ। ଆରମ୍ଭରେ ବି ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହିପରି ହେଉ। ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। 7ଟି ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି। ଏ 7ଟି ଯାକ ବିଷୟ ଏହା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛି, କନଭରସେସନ ହେଉଛି। ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ପଚରା ଉଚରା ହେଉଛି। ଯୋହନଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି। ସେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଓ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି? ଯୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହା ହେଉଛି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବା ଏ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଜନତାକୁ, ସେ ମହାଜନତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି, ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମହାକ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଦଣ୍ଡ ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ବଳିଦାନର ରକ୍ତ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷମାର ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣର ନିମନ୍ତେ ଢଳା ଯାଇଅଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିପାରୁ, ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁ। ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଯାହା ସମୁଦାୟ ମାନବ ଇତିହାସରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଇତିହାସରେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳଠାରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛନ୍ତି। ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ସାଜି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ବଳିର ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଏକାଥରେ ସବୁ ସମୟର ନିମନ୍ତେ ପରିଷ୍କାର କରେ, ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାରି ରକ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି 7 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ। ପୁଣି 7 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତାହା 16 ଏବଂ 17 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ। ସେମାନେ କେବେ ତୃଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଜାଗ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୋଛିଦେବେ। ଅତୀତର ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ
ईश्वरଙ୍କର ଉପस्थितिରେ जो आनंद अच्छी भाई भौणी टिके चिंता करी देखंतु अल्प समय प्रभुଙ୍କର उपासनारे आम माने जेतेबेले शतप्रवृत्त होइकी रहू जो आनंद अंतर मध्य अनुभव करू ताहा अल्प समय पाई हुए नुहे कि तेरे स्वर्गर कथा चिंता कर देखंतु अनंत काल से प्रकार आनंद रे आम माने विभोर होइकी रहिबा से प्रकार स्वर्ग को जीवा निमंते आपण कौन चाहिए नाही प्रस्तुत हेबे नाही आज प्रस्तुत हबार समय आसंतु से प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे निज जीवन को समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आम माने तुमर धन्यवाद करुछु आज अध्ययन आरंभ रु ए पर्यंत तुम आम को कढ़े आनिल जो स्वर्ग आम मान प्रस्तुत करी रखिअछ से स्वर्ग को जीवा पाई मध्य प्रस्तुत लोक मानकर आवश्यकता रही जो माने आपणा आपणा को प्रस्तुत करती से माने सेठा को निया जिवे। हे प्रभु भयंकर दिन गुड़िक ई पृथ्वीवासी उपर आसुअछि आम मान उपर को आसुअछि ए भयंकर अंधकारपूर्ण क्लेशयुक्त समय घटना गुड़िक आसीबा समय प्रभु जेपरी आम माने दुष्ट मान परी प्रकृति जगत निकट को दौड़बू ना पहाड़ पर्वत निकट को दौड़बू ना मात्र ईश्वरंकर मेष शावकंकर निकटवर्ती हेबू ताहांकु आम मानकर आश्रय दृढ़ दुर्ग भाव में ग्रहण करिबू एवं ए समस्त क्लेशरु रक्षा पाई तुम निकटरे संगृहीत हेबू आशीर्वाद कर। पुणी थरे प्रत्येक भाई भौणी माने जो माने जो विभिन्न स्थान में रही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में जोग देइछंती से समस्त को तुम चरण तले रखुअछि प्रत्येक को आशीर्वाद कर ए नूतन वर्षटी प्रत्येक मंगल आशीर्वाद शांति रे परिपूर्ण हो प्रत्येक को दया कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन। एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक संगरे सारा विश्व थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भौणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आज बाइबल अध्ययन जोग देइथिबारु। आसंता थर आम माने अष्टम अध्याय को आलोचना करिबा पढ़ी के आसीथिबे।